Welcome to our online class from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class. We will continue chapter number 7, bioenergetics, and our lecture number is 4. Our topic is dark reaction or light independent reaction. This phase of photosynthesis does not require energy of photons but also take place in day simultaneously when the light reaction. The ATP and NADPH2 synthesized during the light-dependent reactions are dissolved in stroma there. They provide energy to power the synthesis of glucose from carbon dioxide and water, that is H positive and electron of water. This phase occurs independently without light as long as ATP and NADPH2 are available. This phase of photosynthesis is cyclic phase. It occurs in a set of reactions called Calvin-Benson cycle. Due to its discovery and the C3 carbon containing compounds form initially cycle. The C3 cycle requires number 1 carbon dioxide, normally from air, some of it also comes from respiration. Number 2, carbon dioxide capturing sugar, a pentose sugar. Number 3, enzymes to catalyze all the reaction. And number 4, energy from ATP and ADPH2 come from light dependent reaction. ये जो डार्क रिएक्शन है इसमें फोटोन की एनर्जी को हम बराह रास्त इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये जो अमल है ये दिन ही में अमल पजीर होता है, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के फ़ौरन बाद अमल पजीर हो जाता है। ATP NADPH2 जो कि लाइट इंडिपेंडेंट के दौरान पैदा होते हैं और स्टोमा में हल हो जाते हैं, फिर वहाँ से ग्लूकोज बनाने के लिए एनर्जी मुहैया करते हैं। ग्लूकोज बनने का ये अमल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिलकर होता है। जब तक ATP NADPH2 मौजूद होते हैं इस अमल के लिए रोशनी दरकार नहीं होती। फोटोसिंथेसिस का ये जो साइक्लिक रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस का एक मुकम्मल सेट मौजूद होता है, इसको हम कैल्विन-बेंसन साइकिल भी कहते हैं और इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। 3 कार्बन वाला मुरक्कब जो पहले से बनता है। इस C3 साइकिल के लिए हमें मंदरजा ज़ैल अशिया दरकार होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आमतौर पर हवा से हासिल होती है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा रेस्पिरेशन से भी हासिल हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब्स करने वाली शुगर, नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड को जब्स करने वाली शुगर एक 5 कार्बन डाई वाली पेंटोज शुगर। तमाम अमल को तेज़ करने के लिए एंजाइम्स ATP NADPH2 से हासिल होने वाली तवानाई, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से हासिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर। Rate of biochemical reaction depend on some factor which affect the rate are called limiting factor. For example, at low light intensity, rate of photosynthesis increases continuously, but at a high light intensity, the rate becomes constant. Limiting factor बायोकेमिकल रिएक्शन की रफ्तार का जो इन्हिसार है कुछ रिएक्शंस पर होता है जो इनकी रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। ये जो अवामिल हैं ये लिमिटिंग फैक्टर कहलाते हैं। मसलन रोशनी की कम शिद्दत पर फोटोसिंथेसिस की रफ्तार में इजाफा होता है, लेकिन रोशनी की ज़्यादा शिद्दत पर रफ्तार यकसा नहीं रहती। Light intensity, carbon dioxide concentration and temperature can all be limiting factor for the rate of photosynthesis. Following graph shows the idea of limiting factor. लिमिटिंग फैक्टर क्या क्या है? लाइट इंटेंसिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है और टेम्परेचर, ये सब के सब क्या है? लिमिटिंग फैक्टर में जो फोटोसिंथेसिस के अमल को महदूद अवामिल में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ में भी ये दिखाया गया है। Point Z on graph, light intensity is a limiting factor. B, if the light intensity increases to bright light and moderate temperature, the concentration of carbon dioxide in air becomes limiting factor. It is clearly observed that the same plant, if put into air containing high carbon dioxide, then the rate of photosynthesis becomes high.
If there is a high light intensity and high carbon dioxide concentration, then the temperature becomes the limiting factor, but the temperature should not be very high, otherwise enzymes becomes denatured. यहाँ ग्राफ की मदद से आपको बताया जा रहा है कि ग्राफ में Z जो पॉइंट है उस पर रोशनी की शिद्दत लिमिटिंग फैक्टर है, और B में जो आपको रोशनी की शिद्दत दिखाई गई है वो ब्राइट लाइट तक में इजाफा जो है दर्जा हरारत में हो जाए तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, इस बात का वाज़ेह इशारा किया गया है कि अगर पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाली कंसनट्रेशन में रखा जाए तो फोटोसिंथेसिस की शरह में इजाफा होगा। अगर हम लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर टेम्परेचर जो है महदूद आमिल होगा, लेकिन ख्याल रहे कि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर दर्जा हरारत बहुत होगा तो फिर एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर हम इफेक्ट देखेंगे लाइट इंटेंसिटी का कि फोटोसिंथेसिस के अमल पे कैसे असर अंदाज होता है। एपरेटस दिए हुए हैं आपको, लार्ज बीकर ऑफ वाटर, बॉइलिंग ट्यूब, स्टैंड एंड क्लैम्प, पेपर क्लिप, फ्रेश वाटर, हाइड्रिला, रूलर, स्टॉप वॉच, थर्मोमीटर, लैम्प, etc। ये सारे आपको एपरेटस दिए हुए हैं। प्रोसीजर बताया हुआ है आपको, इसको रीड कर लेते हैं हम। टेक अ हेल्दी पीस ऑफ हाइड्रिला, प्लेस इट अपसाइड डाउन इन बॉइलिंग ट्यूब ऑफ वाटर, इट हेल्प्स टू सिंक द हाइड्रिला। हाइड्रिला जो है वाटर प्लांट है, हमने एक वाटर प्लांट का एक टुकड़ा ले लिया और उसे उबलते हुए पानी की एक ट्यूब में उल्टा करके डालते हैं। इस तरह हाइड्रिला ट्यूब में नीचे की तरफ चला जाएगा। Number 2, clamp the tube to hold it upright in a beaker of water. Ensure that plant is perpendicular to the source of light. The beaker of plant is needed to maintain a constant temperature. अब हमें इस ट्यूब को इस तरह लगाना है कि जो लाइट है वो हमें परपेंडिकुलर इस ट्यूब पर पड़े, और इस ट्यूब को हमें बीकर में इस तरह रखना है कि इसकी दर्जा हरारत अपनी सतह पे कायम रहे। Place the thermometer in water to record the temperature. Turn off the room lights to reduce background light and place a bench lamp close to the beaker. हमें अब थर्मोमीटर को रखना है पानी में, इस तरह लगाना है कि पानी का जो टेम्परेचर है वो नापा जा सके। हम उसे नोट करते रहें और कमरे की तमाम लाइट्स बंद कर दें ताकि जो पस मंजर की रोशनी वो कम हो जाए और टेबल लैम्प बीकर के करीब रख दें। Observe the plant for a few minutes. You will see the bubbles of gas coming out from the cut end of the plant. If no bubbles are seen, repeat the experiment by using fresh piece of water. Count the number of bubbles per minute. If the rate of bubbling is too fast to count, move the lamp away from the beaker until the rate becomes countable. कुछ मिनट तक हम पौधे को देखें, उसके बाद हम पौधे के कटे हुए हिस्से की तरफ से बबल्स देखेंगे, वहाँ से खारिज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हो रहे होंगे तो फिर हमें ये ताज़ा पौधा दोबारा से इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 मिनट में हम काउंट करेंगे कितने बबल्स निकल रहे हैं। अगर हम रफ्तार उनकी ज़्यादा होगी तो हमें लैम्प को थोड़ा दूर कर लेना चाहिए। Repeat the counts until you are sure that the rate is constant. Record the rate and the distance of the lamp from the plant. हमने क्या करना है, अब उसको काउंट करने का ये अमल उस वक्त दोहराना है जब तक कि बबल्स निकलने की रफ्तार एक जैसी ना हो जाए। इसकी रफ्तार और लैम्प का पौधे से फासला अपने पास महफूज कर लें। Repeat the counts at different distance from the plant. Keep the temperature of water constant throughout the experiment. और इसी जो एक्सपेरिमेंट है इसको हमें पौधे का फासला तब्दील करते जाएं और हम बबल्स की रफ्तार को नोट करते रहें। इस तरह हमें 3 मुख्तलिफ मकामात से बबल्स की रफ्तार को नोट करना है। पूरे जो एक्सपेरिमेंट के दौरान है हमें क्या करना है, इसमें पानी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखना है। Suppose that the rate of bubble production is the measure of the rate of photosynthesis. It is concluded that the rate of photosynthesis decreases at low light intensities
As the lamp is moved away from the plant, the intensity of light falling on it also decreases. इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या निकालेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन के जो बबल्स की निकलने की रफ्तार है दरअसल फोटोसिंथेसिस की रफ्तार है, और इससे ये नतीजा निकलता है कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो रोशनी की शिद्दत कम होने पे कम हो जाती है। जैसे कि लैम्प को हमने पौधे से जैसे दूर करते गए तो रोशनी की जो इंटेंसिटी थी वो भी कम होती गई, और साथ साथ फोटोसिंथेसिस की जो रेट था, फोटोसिंथेसिस का रेट था वो भी कम होता गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आप ये तमाम लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पर बआसानी सर्च कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। DHSPSS DNCPSS ये हमारे चैनल का नाम है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो मैंने लेक्चर पढ़ा है इसको आप बार बार देखें और इसको अच्छी तरह समझें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।